Today we have adjective and adverb. These are two of the important parts of speech, and we will be discussing these two parts of speech. And I hope that we will be able to understand them and also use them properly. What is an adjective? Adjective. What is an adverb? Adverb. So we have adjective and we have adverb. You see that there are two things which is one thing which is common in both of them. Adjective, adverb. So why we use the word adjective, adverb? We use adjective, adverb because these two aid. That's why we use adverb, adjective. So one thing keep in mind that both adjective and adverb aid. It means that they are not important themselves, they aid to others. Now adjective aid to noun and pronoun, adverb aid to verb, adjective or another adverb. Please make a comment. Make a comment. Adjective aid to noun and pronoun. Adverb aids to verb, adjective, another adverb. Now adjective aid to noun and pronoun. Adverb aid to adjective, verb and another adverb. So make a diagram, and in that diagram you can write adjective for noun and pronoun, adverb for verb, adjective, another adverb. So we understand that both adjectives and adverb aid something. Now what is that thing? If it is noun and pronoun, it is called adjective. If it is verb, adjective, another adverb, then it is called adverb. Now let me explain this with examples. For example, we have girl. Now what is girl? Girl is noun. You want to add something to girl. Add something like intelligent, beautiful, attractive, hardworking, professional, smart, fast, quick. So all these are adjectives. Why? Because you add to noun. For example, we have pronoun he. Now what is he? Add something to he. He, intelligent, hardworking, handsome, social, sociable, clever, bad, good, all these. Okay, so this is for he. So what you use for he or you use for she? That is adjective. And what you add to a verb, then that is adverb. For example, she works intelligently. She works intelligently. So work is a verb. So we cannot say intelligent work. She is intelligent, but work is intelligently. She works intelligently. He studies intelligently.
He studies smartly. So that is adverb. So when it is he, she, adjective. When it is verb, adverb. Adverb mainly adds to verb but also to adjective. Very intelligent. So intelligent is adjective and very is adverb. Very slowly. So very is adverb, slowly is also adverb. Very is adverb, slowly is adverb. So once again, adverb adds to verb, adjective, another adverb. Adjective adds to noun or pronoun. The difference between the two is that adjective is used for noun pronoun, adverb is used for three things. Number one, verb. Number two, adjective. Number three, another adverb. Like very slowly. Slowly is another adverb, very is also adverb. So there are two adverbs in this sentence. So please write a definition of adjective and adverb. If you write the definition, so it means, so please now write the definitions of both adjective and adverb with examples. I don't see your comments. I have given you detailed notes answering all the questions, but I am in a little hurry today, so I am explaining and introducing the topics, and then I leave you to study the notes and go into further details. You can ask me questions also. Imran Khan, adjective is used. Is used. U-S-E-D. Noun, capital N. Pronoun, capital P. Adverb is used. For verb, V capital, adjective A capital, and another adverb. Now give me some examples. Give me examples of adjective and adverb and tell me in the comments why it is adjective and why it is adverb. If you understand the difference between these two, you will avoid many mistakes in your writing. Nozaina, I shall go directly to the office. Now ये आप समझे नोजाइना कि गो, अगर आप गो के लिए लिखोगे तो डायरेक्टली है, अगर आप गो के लिए लिखोगे तो डायरेक्टली होगा क्योंकि गो वर्ब है. अगर आप आई के लिए लिखोगे प्रोनाउन तो वो डायरेक्ट होगा. इधर हम गलती करते हैं. आई शैल गो डायरेक्टली टू द ऑफिस. गो डायरेक्टली. आई एम डायरेक्ट टू द ऑफिस. अगर आप गो निकाले तो फिर डायरेक्ट होगा. ये यूज पे है फंक्शनल ग्रामर कि भाई ये नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें जो है ये परमानेंट नहीं है. हम गलती क्यों करते हैं कि हमें फंक्शन की समझ नहीं आती. आई एम डायरेक्ट इन ऑफिस विद माई बॉस. मैं अपने बॉस के साथ ऑफिस में डायरेक्ट हूं. चूंकि आई की बात हो रही है तो डायरेक्ट होगा. आई गो टू ऑफिस डायरेक्टली क्योंकि गो की बात हो रही है. हालांकि वो आई जा रहा है लेकिन बात किसकी हो रही है? गो की. So please give some more examples and definitions. Let us discuss adjective and adverb in the comments. I am discussing with you ताकि discussion से आपको समझ आ जाए. Adjective is a part of speech that modifies
एडजेक्टिव जो है क्या है, सिंगल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सिंगल के साथ मॉडिफाइज आएगा। इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करो। एडजेक्टिव क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहते हैं, सिंगुलर के साथ एक वर्ब आएगा, प्लूरल के साथ दूसरा आएगा। क्योंकि एडजेक्टिव सिंगुलर है इस वजह से इसके साथ क्या आएगा, मॉडिफाइज। एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट मॉडिफाइज अ नाउन, नाउन कैपिटल एन, प्रोनाउन पी कैपिटल। अब एडवर्ब का आपने ए कैपिटल लिखा है, गरीब नाउन और प्रोनाउन का आपने, यार मैं इसलिए गुस्सा होता हूं ना कि ये तो बहुत बेसिक्स है, बच्चों वाली चीजें है ना। मैं CSS लेवल के क्लासेस पढ़ाता हूं और इसमें ये गलती आप लोग करते हैं। एडवर्ब इज यूज फॉर वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ये मॉडिफाई शॉडिफाई छोड़ो, सिंपल लिखो एड, एड बस। अब मॉडिफाई जेन में आते पहले मॉडिफाई क्या होगा। I will clearly mention your name in the proposal. अब ये बताओ कि इसमें क्या है, क्लियरली क्यों, क्लियरली क्या है और ये क्यों क्या है। गिव मी द रीजंस। इमरान खान आपने क्लियरली लिखा है तो क्या है, हमें कोई पता नहीं कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, क्यों है। दिस इज द डिस्कशन। ये मॉडिफाई शॉडिफाई तो आप प्राइमरी क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं आई कि क्या है। सिंपल ये है कि नाउन प्रोनाउन जो है, नाउन एंड एडजेक्टिव इज फॉर नाउन एंड प्रोनाउन, सिंपल। एडवर्ब इज फॉर वर्ब, एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब। फॉर FOR, फॉर यूज करे या एड यूज करे, चीजों को खामखा कॉम्प्लिकेट ना करे। ही इज अ ब्यूटिफुल बॉय। अब बॉय के लिए ज़्यादातर हैंडसम एडजेक्टिव यूज होता है, ब्यूटिफुल भी आप यूज कर सकते हैं, हैंडसम। तो ही इज अ हैंडसम बॉय, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव वाई, असल चीज वाई है। ये तो बच्चे को भी पता है कि ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है, लेकिन क्यों है, वाई ब्यूटिफुल इज एडजेक्टिव, दिस इज द क्वेश्चन। Anybody can tell me why beautiful is adjective? इमरान खान लगे हैं, बाकी कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा। आप लोग यार डिस्कस क्या करें, कमेंट करें, गलती करें, मैं ठीक करूंगा उसको, मैं क्या करूं। बहुत सुस्त किस्म के अवाम है, कमेंट भी नहीं कर सकते, एडजेक्टिव और एडवर्ब पे भी नहीं लिख सकते। क्लियरली is here adverb as it adds। एडवर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, एड्स आएगा। मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि ये चीज मैंने आपको 50 दफा समझाया है, फिर भी वही गलती। मतलब पहली दफा बंदा गलती करता है तो ठीक है, दूसरी दफा भी करे तो ठीक है, लेकिन चौथी दफा तो स्टूपिड होता है ना, तो स्टूपिड को बंदे को गुस्सा आता है। अब मैं भी इंसान हूं, कितने महीने से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ही गोज होता है, आई गो होता है, दे गो होता है, फिर वही गलती। इट एड्स टू द मीनिंग, इट एड्स द मीनिंग क्या होता है यार, खुद इसको पढ़ो ना। इट एड द मीनिंग कोई चीज है, इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अनदर एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, मैं क्या उनसे तरीका इस्तेमाल करूं कि आप लोगों को समझ आ जाए।
आपने कौन सा जुमला बनाया था इमरान खान, जो क्लियरली तुमने कहा एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है दूसरा? वो अपना सेंटेंस जरा दोबारा देखो। और राइट क्लियरली है, प्रोपोजल योर नेम क्लियरली, राइट क्लियरली, राइट वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। ब्यूटिफुल इज एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, शमाइल ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव, और ए कैपिटल, एडजेक्टिव का जो ए है वो कैपिटल, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग हिम। डिस्क्राइब शिक्राइब को छोड़ो, हिम का क्या मतलब है? इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ प्रोनाउन, बट ब्यूटिफुल डज सूट हियर, इट शुड बी स्मार्ट। डजट क्या होता है? डज नॉट। प्रोफेशनल राइटिंग करिए, प्रोफेशनल, जिसमें मामूली नुक्ता भी गलत ना हो। राइटिंग को सीरियस ले ले, राइटिंग में आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि नजर आता है, ये रिकॉर्ड हो जाता है। अब बट डिस्क्राइबिंग हिम, फुल स्टॉप, बट का जो बी है वो स्मॉल है। बच्चा समझता है कि जब मैं सेंटेंस स्टार्ट करता हूं तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। नहीं, लड़का ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम इसको हैंडसम कहते हैं, हैंडसम। आई विल क्लियरली मेंशन योर नेम इन द प्रपोजल। तो यह जो क्लियरली है ये मेंशन के लिए है, इसमें एडजेक्टिव तो है ही नहीं, और तुम कहते तो क्लियरली इसलिए एडवर्ब है कि क्योंकि ये एडजेक्टिव के लिए है। नईम खान इज एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट किधर होता है यार? ए ऑनेस्ट होता है, एन ऑनेस्ट, हाँ एन ऑनेस्ट, ठीक है। एन ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट, ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव बिकॉज इट क्वालिफाइज नईम खान। क्वालिफाई शैलिफाई मॉडिफाई छोड़ो, इट एड्स टू नईम खान, इट इज फॉर नईम खान, ये नईम खान के लिए है। ऑनेस्ट जो है वो इसलिए एडजेक्टिव है, इट इज फॉर नईम खान, एंड नईम खान इज अ नाउन। नईम खान नाउन है तो नाउन के लिए एडजेक्टिव होता है, वर्ब के लिए एडवर्ब होता है। सो प्लीज रीड द नोट्स, डू मोर प्रैक्टिस these two parts of speech. Why I am teaching it together? Because we confuse it. इन दोनों को हम कंफ्यूज करते हैं। शी इज फास्ट, वो तेज है, तो फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि शी के लिए है। शी राइड्स फास्ट, अब ये जो फास्ट है ये एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि ये राइड के लिए है। दोनों सेंटेंसेस लिखिए, शी इज फास्ट, शी राइड्स फास्ट। पहला फास्ट एडजेक्टिव है, दूसरा फास्ट जो है वो एडवर्ब है। लफ्ज एक है फास्ट, यूज पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है कि ये एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। अगर शी के लिए है तो एडजेक्टिव है, अगर राइट के लिए है तो एडवर्ब है। लफ्ज एक है फास्ट। ही स्विम्स वेल। नाउ व्हाट इज वेल? वेल क्या है? व्हाट इज वेल? पूरी बात क्या करें? एग्जाम्पल देते हैं, उसमें कहे कि ये लफ्ज एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और क्यों है, फिर आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। हाँ, अब इमरान खान ने सही लिखा है, शी इज फास्ट, चूंकि शी के लिए है तो एडजेक्टिव है। शी राइट्स फास्ट, राइट्स के लिए है तो एडवर्ब है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब मैं कहता हूं वेरी गुड, तो ये वेरी क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? गुड के लिए है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है।
So please read the notes, do more practice, ask me questions, write a paragraph. उस पैराग्राफ में 4-5 एडजेक्टिव्स और 4-5 एडवर्ब्स यूज़ करें ताकि आपको मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ नाउन से काम नहीं चलता, सिर्फ वर्ब से काम नहीं चलता, हमने एडिशन करना है। एडजेक्टिव, एड वर्ब, दोनों में एड इसलिए है कि हमें एड करना होता है, मज़ीद चीज़ें लिखनी होती है। So all the best. See you now in LPCS classroom.